Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths chapter number 13 profit and loss and the practice set 34. So in this practice set some of the measurements of the selling price and the cost price is given to you, so that you are supposed to make the question also and then you are supposed to solve it. So here the question is given to you. Let us read the question and listen the question very carefully. Using the figures given below, frame the problem based on the profit percentage or a loss percentage and solve the problems. मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है दिए गए हैं, आपको उनका यूज करके क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के बेस्ड पर जो है कॉस्ट परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के हिसाब से जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स बेस करना है, बनाना है और फिर उसके बाद जो है आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट वन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू अस एज 1600 एंड द सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस एज 2800, यानी that is 2800 rupees. So let us solve this problem here. Now here by using the given information we are going to make the problem over here. So I am writing the question here. Radha has bought the 1 crate of mangoes in 1600 rupees while she sold it at rupees 2800. Find the percentage profit she made in transaction. यहाँ पर हमने क्या लिखा, राधा हैज बॉट 1 crate of mangoes in 1600 rupees while she sold it at the rate of or at the rupees of 2800. Find the percentage profit she made in ट्रांसैक्शन. तो अब हमने क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया है हमको 1600 एंड द सेलिंग प्राइस इज 2800. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन cost price of 1 crate of mango is equals to CP is equals to 1600 rupees. Okay, then what is the given us, selling price. Selling price of 1 crate of mangoes is equals to SP is equals to 2800 rupees. Now here SP is greater than CP, so therefore we are going to find out the further percentage profit. So here we are going to start up with the profit percentage. Now here we are going to find out the profit. P is equals to SP minus CP. Therefore P is equals to, what is the SP we are having, that is 2800 minus 1600
rupees. Okay, so the answer is, if you are subtracting them both, so the answer is 1200 rupees. तो यहाँ पर जो है 1200 rupees we has obtained as a profit. Now we are supposed to find out the percentage profit is equals to now we are having the formula of a percentage profit is equals to profit upon CP into 100. So here we'll substitute the value of everything, that is profit percentage is equals to, what is a P? 1200 rupees upon 1600 into 100. Okay, now here we are going to cancel this. So यहाँ पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये दो जीरो कैंसिल होता है. देन 16 के टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे या 2 के टेबल से करेंगे तो 2 से हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा. 2 8 जा 16. Then this one is 2 6 is 12 and then 600. Now by the 8 we are going to do here 8 7 are 56. ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा 8 7 are 56. ओके, सो ये 7 are 56 लिए, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास? हाउ मेनी? Here we are remaining with the 4. So 4 0 40. So it is 8 5 are 45. So it will be how much? 75%. Okay. So therefore we are going to write down profit percentage is equals to 75 rupees. Sorry, it will be percentage only. So profit percentage is 75. So therefore we are going to write down she has made profit percentage of 75 in the transaction. ओके, तो ये इस तरह से हमारा पहला सम कंप्लीट होता है. अब जो है हमको दूसरा यहाँ पर दिया है, कॉस्ट प्राइस इज 2000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 1900 रुपीज. तो अब जो है हमको यहाँ पर क्या करना है, इस सम के लिए क्वेश्चन बनाना है एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट. So for the second question we are having the cost price is 2000. So we are going to write down here Rahim bought a fan in 2000 rupees, but he sold it for 1900 rupees. What was the percentage loss he incurred? ओके, तो अब जो है हमको यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, रहीम बॉट अ फैन in 2000 rupees but he sold it for the 1900 rupees. What was the percentage loss he incurred? हमको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करना है. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन is equals to CP is equals to 2000 rupees. Okay, then let us write about the selling price. Selling price of a fan is equals to SP is equals to how much, 1900 rupees. Then SP is smaller than
CP. Therefore, loss is equals to CP minus SP. ओके, ये हो गया. अब जो है हम क्या लिखेंगे यहां पर, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो यहां पर हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, L इज इक्वल्स टू व्हाट इज द CP, दैट इज 2000 rupees minus 1900 rupees, that will gives us the 100 rupees. ओके, तो हमारा यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 100 रुपीज आया है. अब हमको क्या करना है, इसका लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है. तो चलिए आइए लॉस परसेंटेज भी हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए. So let us find out of the percentage loss is equals to loss upon CP into 100. Okay, so therefore loss percentage is equals to कितना आएगा यहाँ पर 100 रुपीज अपॉन 2000 रुपीज into 100. 0 0 and 0 0 get cancelled, and this one 0 is getting cancelled. So here 2 1s are 2, 2 5s are 10. So it is 5%. So therefore loss percentage is equals to 5. So we are supposed to write down, therefore Raheel has incurred the percentage loss of 5 in this transaction. So like this way we have completed our second sum also. Let us come and complete the next sum. तो थर्ड सम के लिए हमको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्रोवाइडेड है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज 1200 and each selling is 1400. तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस जो है 8 आर्टिकल्स के लिए एक साथ आपको 1200 रुपीज दिया है और हर एक प्राइस को अलग अलग करके बेचा गया है. तो कितने में बेचा गया है, 1400 रुपीज में. तो हमको टोटली जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना होगा उसका प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, तो चलिए आइए सम को हम सॉल्व करेंगे. Now here we are making the question. So let us make the question over here. A shopkeeper has bought 8 drilling machine worth rupees 1200 for each. He sold all of those machines at the 1400 rupees each. Find the percentage profit or a loss he made. ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. A shopkeeper has bought 8 drilling machine worth rupees 1200 for each. He sold all of those machines at the 1400 rupees each. मतलब उसने सारी की सारी मशीन्स को एक एक करके 1400 रुपए में बेचा है. तो आपको ये बताना है कि क्या उसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, और अगर लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो उसका परसेंटेज कितना होगा. तो आइए यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे,
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 8 ड्रिलिंग मशीन के लिए बोला गया है कि हर एक का 1200 था, और फिर जो है उसने हर एक के लिए जो है 1400 जो है चार्ज करके उसको बेच दिया है। तो हमको यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और टोटल एसपी भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ कॉस्ट प्राइस of one drilling machine is equals to 1200 rupees. Therefore, total CP of 8 drilling machine is equals to 1200 into 8 is equals to, it will be 9600 rupees। ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस तैयार हो गया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एसपी। तो सेलिंग प्राइस of the one drilling machine is equals to 1400 rupees। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एसपी ऑफ 8 ड्रिलिंग machine is equals to SP is equals to 8 into 1400 is equals to 11,200 rupees। अब यहाँ पे हमारे पास SP और CP आ गया है। हमको क्या करना है, या तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट, या तो हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, या तो लॉस मिलने वाला है, वही चीज हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इतना लिख लेने के बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हियर वी आर सपोज टू गो फर्दर विद द फाइंडिंग ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर इट विल बी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे एसपी माइनस सीपी के लिए। तो एसपी कितना है हमारे पास 11,200। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी इज 11,200 माइनस 9,600 rupees. So therefore percentage profit is equals to how much it will be, the nothing but 1600 rupees। तो 1600 rupees हमको यहाँ मिल जाता है। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, दैट इज P अपॉन CP इंटू 100। हो गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लिखेंगे, P कितना है हमारे पास 1600 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 9,600 rupees into 100. So this 20, these 20 will get cancelled. So here we'll make the cancellation. So it will be the percentage profit is equals to 16.66 है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, therefore he has made percentage profit of 16.66 in the transaction। So इस तरह से हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट होता है। आइए फोर्थ सम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है
Cost price of 50 kilograms of a grain is 2,000 rupees. Selling price is 43 rupees per किलोग्राम. मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 किलो ग्रेन्स जो है वो 2,000 रुपए में खरीदे गए हैं और 43 पर किलोग्राम पर उनको बेचा गया है. तो आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए so the fourth question we are writing here. Alia bought a sack of 50 kilogram of wheat at the 2,000 rupees. She sold the wheat in 43 rupees per kilogram. What will be her percentage profit और लॉस? ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, आलिया बॉट अ सैक ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट द रुपीज 2,000. शी सोल्ड द व्हीट इन 43 रुपीज पर किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम पर उसने 43 जो है वो चार्ज किया है. व्हाट विल बी हर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? मतलब हम उसने प्रॉफिट लिया है या फिर उसे लॉस हुआ है, वो हमको पहचानना है या बताना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kilograms of wheat is equals to 2,000 rupees. Okay, now here the next one is given to us SP यानी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करना है. तो सेलिंग प्राइस फॉर 50 kilograms of wheat is equals to 50 into 43. That will be equals to how much? It will be 2,150 rupees. ये हो गया. अब इस तरह से हमारे पास SP यानी सेलिंग प्राइस भी आ गया है, कॉस्ट प्राइस भी आ गया है. सो वी आर सपोज टू कंपेयर देम. So SP is greater than CP, therefore it will be the profit, है ना. तो profit is equals to P is equals to SP minus CP. अब इससे आगे जो है हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम जो इसे माइनस करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर लिख के रखा है P is equals to SP minus CP. So we have substituted the value over here, 2,150 minus 2,000 rupees. So the answer is profit is equals to 150 rupees. तो यहाँ पर प्रॉफिट का आंसर हमको कितना मिल गया है, 150 मिल गया है. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लिखेंगे P अपॉन CP इंटू 100. तो यहाँ पर जो है therefore percentage profit is equals to what is the P, that is 150 upon cost price. कितना हो गया था हमारा यहाँ पर, cost price was the 2,000 rupees. तो 2,000 into 100. ओके, तो यहाँ पे लिखा 100.
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल. अब यहाँ पर जो है 2 1s are 2 and then it will be 2 7s are 14 and 1 will be carried forward, so it will be 5s are 10. So therefore percentage profit is equals to 7.5. So therefore we are supposed to write down she has made a percentage profit of 7.5 in the transaction. अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है. अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी तरह से आप जो है पहले सम के लिए क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आगे का सॉल्व करके इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस. इसी के साथ जो है हमारी ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इस नेक्स्ट चैप्टर को बहुत इंजॉय करेंगे बिकॉज इट इज नथिंग बट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द बैंक, है ना. तो चैप्टर नंबर 14 इससे आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट. इसमें हम सीखेंगे किस तरह से जो है बैंक का ट्रांसैक्शन होता है और कौन कौन सी नई चीजें हमें देखने को मिलती है. ओके, अब तक के लिए इतना ही. खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमको दुआ में याद रखिए. अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर.